he started it. He put it out, his girlfriend's initials. You heal me so much. You do this, do that. उसके initials हर जगह डालने लग गए थे वो. Yes, it has been at such a young age. He's barely 10. उसने अभी दुनिया देखी ही नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली जो देखी है बहुत ही क्रूअल, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड देखी है. अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे पहली बार हो रहा है दूसरी बार, गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. सिंपल एज दैट. चाहे वो एक मैरिज में हो, चाहे महीनों पहले ही ये समझ में आने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा था क्या है. लेकिन 10वें महीने तक ये लगा कि नहीं, अब आप घर आके बात करो. एंड आई वांटेड टू गो टू माय सेफ प्लेस व्हिच वाज माय पेरेंट्स. इनिशिएटिव उन्होंने दिखाया मुझे. कपल थेरेपी की बात की. लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे, बच्चों को बीच बीच में मिलवा लेंगे. बड़ी बात. डिसेंसी में अभी तक मुझे कोई उनसे ना अपॉलॉजी मिली है, ना नहीं, ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं. बहुत मेंटल फिजिकल लेवल पे, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आई तो I was mentally harassed, and physical level पे I've gone through a lot. मेरे साथ कुछ गलत ही ना करते, जेडन के साथ कुछ गलत ना करते. हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal और आज मेरे साथ है दलजीत कौर. Hi दलजीत, welcome to Filmy Beat. Thank you for having me. सबसे पहले तो दलजीत, how are you coping up with this difficult time? Not been easy, but getting better every day. Right. You know, it is very difficult to find love second time. लोगों को एक बार नहीं मिलता, but of course it's very difficult to find the love second time. जब चीज़ें it didn't work out, तब कितना दुख हुआ? Obviously दुख हुआ, बहुत दुख हुआ. It's not easy. Not the first time, not the second time. Right. When was the thing कि भाई चीज़ें बदलनी शुरू हुई, आपको लगा things are not working out and I need to take this step and come to India? Lots was happening, so it was inevitable. वो करना ही था. तो also when I came here, I thought I'm going back. So it was not really an ending from my side. और उनकी तरफ से तो he moved on. So the ending came from there, not from my side. Right. But was he cheating on you? कभी जब साथ में थे तब भी ऐसा कुछ लगा था आपको? Not that I saw. I don't know. But of course, what made you think it's time that I come out on social media and let people know? Were these the speculations? Because जब आप I think last year in Jan you came back to India, तब से बहुत सी speculations, actors की life में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, speculations आते रहते हैं. तो क्या कभी आपको इसके लिए लगा कि it's time that maybe I speak out and let people know and let fans know? No, it was never about fans. It was never about people. He was doing so many things on social media that it just looked like the platform I had to respond on, because he started it. He put it out, his girlfriend's initials. You heal me so much. You do this, do that. उसके initials हर जगह डालने लग गए थे वो. जो मैंने भी नोट नहीं किया, मेरे घर वालों ने, फ्रेंड्स ने नोट किया कि एसएन क्या है, क्यों आ रहा है. तो जब मेरे कान तक आई तो मैंने नोट किया, सर हाँ यार ये कुछ वियर्ड है, क्योंकि उसके 1 महीने पहले तक हम बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कैसे वर्कआउट करना है. एंड सडनली आई स्टार्ट सीइंग स्टफ. सो तो उनका सोशल मीडिया पे इतने प्रोमिनेंटली प्रेजेंस उन्होंने दिखाना शुरू किया और फ्लॉन्ट करना शुरू किया. So I think that was my only way to respond. So I thought maybe this is the only way he'll understand. So I started obviously retaliating. But it was a very one-on-one on social media. So, but it was not कि इसको कुछ proof करूँ या उसको कुछ proof करूँ. Social media पे आया, मैंने social media पे जवाब दिया. It was very simple. Right. But while you were with him, कभी any kind of a mental harassment, domestic violence, I don't want to get into what happened. Yeah, I would never get into the details because मेरे बच्चे involved हैं. So I would not want to get into the details of it. Right. How is Jaden coping up? Because आपने एक post डाला था where you had said that Jaden still calls you dad. He's doing better now, thankfully. Jaden is healing better. He's doing better. Yes, it has been at such a young age. He's barely 10. उसने अभी दुनिया देखी ही नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली जो देखी है बहुत ही क्रूअल, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड देखी है. So for him it was a lot of questions. It was very difficult, and I think he has held himself very bravely. Yeah, I think it's tough, but he's getting there.
and I will make sure that he comes out of it. How was when, because you were staying for that brief period जब आप थे वहाँ पे केन्या में, जेरिन के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था? Again, don't want to get into it. What he did, how much he did, don't want to get into it. Right. How did your parents react? Because you know हमारी इंडियन सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ये है कि लड़कियों पे बहुत टारगेट किया जाता है, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट तो हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट, या फिर आपके दिमाग में भी कभी ये था क्योंकि नाउ व्हाट विल सोसाइटी थिंक अबाउट मी? Society का तो नंबर ही नहीं आया because there was so much happening and I am somebody who speaks. I don't like to. I'm not a. What is the right word? I don't. I think I've realized I can't take wrong for a long time. I am a very patient person. तो बहुत time तक मैं benefit of doubt और question answers, discussion, begging सब कुछ करती हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए. But beyond the point, I don't worry. I just need to know that my parents know, my sisters know, my family and friends know. As long as they are on the same page, then it doesn't matter कौन क्या बोल रहा है. So मेरे लिए all that mattered was my parents being on the same page, which they were from the beginning. Right. I remember many years ago, even Shweta Tiwari, she had also said that कि लड़कियां कभी कभी पीछे हो जाती कि अरे सेकंड टाइम है, कैसे भी करके चलाना है, बट इवन शी हैड गिवन अ गुड मैसेज that when it's a wrong partner you have to leave it, it's not a bad thing. So कहीं ना कहीं what would you like to say about the girls who actually have this kind of mindset कि यार नहीं, सेकंड टाइम है तो भी जैसा भी है मुझे चलाना ही पड़ेगा? It is not first time या second time या third time. अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे पहली बार हो रहा है या दूसरी बार, गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. Simple as that. चाहे वो एक मैरिज में हो, चाहे वो एक फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो एक किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो अपने आप को सिचुएशन में एक टाइम के बाद नहीं रखना चाहिए. आप ज़रूर ट्राई कीजिए दैट यू कैन रेक्टिफाई. ट्राई कीजिए कि यू पुट सम सेंस इनटू द अदर पर्सन और अपने राइट के लिए जितना आप यू कैन. कई बार कई रीजंस होते हैं जिससे कई बार आप भी गलत होते हैं, कई बार वो गलत, लेकिन वो एक टाइम के बाद इफ इट्स रिपीटिंग एंड यू फील कि किसी भी तरीके की बुलिंग हो रही है या किसी भी तरीके का अनफेयर सिचुएशन हो रहा है, तो चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, वो 100% बोलना ही चाहिए. एंड रिटेलिएशन बोलो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बोलो, ये अगेन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक. राइट. लड़की हो या लड़का, अगर आप एक ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जो आपको अनसेफ, अनकंफर्टेबल, disrespected feel करा रहा है, then you should step out. Correct. As of course there were so many claims that it was made that maybe because you were not able to adjust in Kenya and that's why you did this. Is it true? Because of course एक different country है. So let's start with so पहली बात तो मैं एक फौजी बेटी हूँ. हर 2 साल में हम शिफ्ट करते थे, कभी साउथ इंडिया, कभी नॉर्थ इंडिया, कभी कहीं. तो फ्रेंड्स भी चेंज होते थे, नई जगह भी जाते थे, तो ये तो बचपन से मैंने देखा है. दूसरा, केन्या एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत इंडियंस हैं, जहाँ फिरंगीज भी हैं लेकिन इंडियंस भी हैं, और वो अफ्रीका है जो अभी भी डेवलपमेंट, हमारा इंडिया इज मच मोर डेवलप्ड देन अफ्रीका, बट देयर इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल. आई हैड इंडियन फ्रेंड्स, आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम देयर. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी. खैर एडजस्टमेंट, अगर अनफेयर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलो तो वो तो मैं दुनिया के किसी कोने में नहीं करती, जो मैंने नहीं किया. हाँ, बहुत महीनों पहले ही ये समझ में आने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन 10वें महीने तक ये लगा कि नहीं, अब आप घर आके बात करो. एंड आई वांटेड टू गो टू माय सेफ प्लेस व्हिच वाज माय मायका, माय पेरेंट्स. और आई वुड लव टू नो कि एडजस्टमेंट किस लेवल. हम एक ऐसी सोसाइटी में थे जहाँ पे थैंकफुली मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है. ऐसा नहीं था कि मैं कोई अनपढ़ गवार जी. कि वहाँ पे मुझे एक्टिंग के अलावा बात ही नहीं करनी आ रही, या मैंने दुनिया ना घूमी हूँ. मैं अच्छा 8-10 कंट्रीज पहले घूम चुकी हूँ और दुनिया देखी है, मैं जेडन ने भी देखी है. तो ऐसा भी नहीं था कि पहली बार किसी फॉरेन कंट्री गए और ऐसा लगा अरे बाप रे ये क्या है. तीसरा, ऐसी कोई जगह नहीं गई, जैसे आप रशिया जाते हो तो वहाँ पे रशियन लैंग्वेज ज़्यादा बोलते थे. आप अगर
फ्रांस में जाएंगे तो ज़्यादा फ्रेंच आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अफ्रीका में ऐसा बिल्कुल नहीं। अफ्रीका में आप इंडियन भी बोलते हैं तो आपको अपना क्राउड मिल जाता है, अगर आपको इंग्लिश आती है। वहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्प थी पेट्रिशिया, Yeah. वो इंग्लिश बोलती और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती, तो ना कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम था। I was 40 when I got married. I was very happy to leave my career, क्योंकि कभी फिल्म्स के लिए कभी मैंने ट्राई किया नहीं। आई वॉज नेवर दैट एम्बिशियस। आई ऑलवेज थॉट दैट आई लव व्हाट आई डू। मैं वहाँ पे भी प्रोड्यूस करने का सोची थी कि मैं अफ्रीका, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, Right. आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस, आई वॉन्टेड टू मेक फिल्म्स देयर ऑल्सो। 100% क्रिएटिविटी मैं कंटिन्यू करती, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो वॉल पे। क्रिएटिविटी आई वुड ऑलवेज स्टार्ट। आई स्टार्टेड अ लिटिल ऑफिस ऑल्सो। मैंने पेंटिंग कुछ एग्जीबिशंस के लिए भी रेडी की थी। तो मैं अपना हाथ पैर मार रही थी, मैं कुछ ना कुछ तो करती टू कीप माई सेल्फ बिजी ऑल्सो, Yeah. टू फॉर अ फैक्ट कि वो बहुत ट्रैवल भी करते थे। 18 दिन 15 दिन वो होते ही नहीं थे घर पे, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। बट वो तो बड़ा कन्वीनियंस वाली बात है कि एडजस्ट नहीं कर पाए। When you came back to India, तो कहीं पे भी उनकी तरफ से नहीं था कि let's sit and solve this out? उनकी तरफ से बहुत इनिशिएटिव उन्होंने दिखाया मुझे। कपल थेरेपी की बात की, लॉन्ग डिस्टेंस कर लेंगे, बच्चों को बीच बीच में मिलवा लेंगे, बड़ी बातें होती थी। एंड आई एक्चुअली थॉट, एंड ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि बहुत कुछ हुआ था बहुत लेवल्स पे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इज गोना टेक अ फ्लाइट, कम हियर, सिट विद माय फैमिली एंड हम सब बैठेंगे, बात होगी। लेकिन तब तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने शुरू कर दी। तब वो सडनली पता चला अच्छा कोई और भी इन्वॉल्व है इस पूरे सेटअप में। Right. और मई एंड तक तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वो रिलेशनशिप में है। तो जैन एंड में मैं आई हूँ, फेब मार्च अप्रैल मई में तो उन्होंने बता दिया कि यस मैं रिलेशनशिप में हूँ एसएन के साथ। उन्होंने वो ये लिखा है मुझे। तो फिर पूरा सब कुछ मतलब पूरा मैथ्स ही गलत हो गया, तो समझ में ही नहीं आया। तो अभी भी मैं डीकोड ही कर रही हूँ। जब वो कुछ टाइम के लिए आई थिंक इंडिया आए थे, आई थिंक ही वाज इवन स्पॉटेड, तो उस टाइम पे भी कभी भी कोशिश की उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की? एक बार कॉल आया था जब ये सब हुआ और एफआईआर का मामला हुआ, लेकिन वो एक तो डिनायल, एक तो ये है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ये वो करके, और ऊपर से आई थिंक बहुत अजीब बात है क्योंकि उसके पहले ही वो एक्सेप्ट कर चुके थे। हाँ. वो तो अगस्त में फिजिकली ही दिख गए उसके साथ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तो मई 31 को बता चुके थे मुझे कि आई एम इन अ रिलेशनशिप। तो उनका कॉल डिडंट मेक एनी सेंस। और कोई उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से कोई मिलके, जो एक मैच्योर तरीके से होता है कि भाई ये गलती हो गई मुझसे, आओ बैठते हैं, आई विल अपोलोजाइज, एक होता है, एक आई थिंक I would expect that from a, you know, well educated, well brought up, well read or whatever जो अपने आप को वो कहते थे। तो वैसा कुछ मैंने उनका ठहराव देखा नहीं, और ऐसा उनकी डिसेंसी में अभी तक मुझे कोई उनसे ना अपॉलॉजी मिली है, ना वो, नहीं ऐसा कुछ इनिशिएट उन्होंने किया नहीं। और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो इस वक्त तो वो डिनाइल में ही होंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ठीक है, उनकी किस्मत और उनके क्या बोलते हैं, कर्मा इज विद हिम। He replied to the FIR, वो अभी तक हुआ है? Because I think last time you had posted that you should reply to the FIR at least. उनके लॉयर शायद गए थे, लेकिन एफआईआर जब होती है तो जिनके ऊपर एफआईआर होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मेंटल फिजिकल लेवल पे, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आई तो आई वाज मेंटली हैरास्ड एंड फिजिकल लेवल पे आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू नो, बैक, बॉडी, एवरीथिंग टेक्स अ टोल। तो जो भी मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल ही अनफेयर है। वो किसी भी कोर्ट में कब क्या प्रूव होगा मुझे नहीं पता, बट इट्स अनफेयर ऑन सो मेनी लेवल्स, ह्यूमन लेवल्स, कि एफआईआर मुझे करनी पड़ी क्योंकि आप घर ही आ गए मेरे, आप पहले ही मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आप इतना कुछ अनफेयर कर रहे हैं, आप मतलब जो भी कर रहे हैं बहुत चाइल्डिश, आप 20-25 साल के बच्चे के जैसे एक्ट कर रहे हैं, आप 45 साल के हैं, मतलब कम ऑन, यू नो। तो उनका वैसे ही जो उनका वो रहा, रवैया रहा, बहुत अनफेयर सा रहा। फिर वो घर ही आ गए, फिर उसको लेकर ही आ गए, मतलब वो टॉर्चर खत्म ही नहीं हुआ। तो फिर लगा कि नहीं करना ही पड़ेगा शायद एफआईआर। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आके मुझे 6-7 महीने हो गए थे, पर उन्होंने फिर मजबूर किया अपने आप को मुझे सेफगार्ड करने के लिए।
फिर मुझे ये भी डर बैठा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ही ना कर दे, जेडन के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि जो इंसान गलत करने के बाद भी रुक ही नहीं रहा है तो उनका तो फिर कोई लेवल होगा ही नहीं। तो फिर मैंने ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो एफआईआर अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए किया, और मैंने ये चीज़ पुलिस को भी बोली है और मीडिया को भी ओपनली बोलती हूँ कि मुझे डर लगता है अपनी सेफ्टी के लिए। मैं अभी ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, माई सोल एंड माई सूटकेस, उसके लिए मैं ट्रैवल करती हूँ। और जब मैं वहाँ पे थी तो वो बहुत स्ट्रांगली बोलते थे, क्योंकि अफ्रीका भी इंडिया जैसे ही है, हाँ। सेफ भी है अनसेफ भी है, तो वो कई बार बोलते थे कि आई नो पीपल हु नो पीपल, अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत बार अलग लेवल पे, मेरे लिए नहीं मगर सुनाई है ये बात। तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ करा ही ना दे, क्योंकि इवेंचुअली उनकी सच्चाई, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया था इंडिया, मैंने उन्हें नहीं बोला था कि आप ऐसी कोई फ्लाइट लें, अभी मतलब 6 महीने नहीं हुए। आई मीन कम ऑन, योर सो कॉल्ड वाइफ स्लैश कल्चरल इवेंट पार्टनर या जो भी वो मुझे कहते हैं, शी इज ब्लीडिंग आउट ऑफ पेन, लाइक गिव हर सम टाइम। एक तो एक ह्यूमन लेवल पे आप कुछ समय तो दीजिए। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू मूव ऑन लाइक यू डिड। गेटिंग अ मैन एंड पोजिंग, यू थिंक आई कांट डू दैट, बट वो नहीं है, हमारे संस्कार ये नहीं अलाउ करते। मैं आज भी कोई मुझे बोलता है आप मतलब डिवोर्स्ड है क्या है, आई स्टिल फील मैरिड। सही गलत कितना क्या नहीं, डिफरेंट थिंग, पर उन्होंने इतना ज्यादा टेरराइज कर दिया है मुझे कि मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना पड़ा। और एफआईआर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए भी की, खुला जाके बोला कि भाई कुछ अगर मुझे होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई विल नॉट डाउट एनीबडी एल्स। सो I think that's the way of there was no choice. It's like being cornered. He didn't stop. He should have just stopped. He didn't do that. Correct. So Ajit, it was lovely chatting with you. Lovely Only wishing happy things in your life forward, and thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. It was lovely being here.